Yes, my dear, very good day to all of you. Thank you. Now I am going to teach you English, the poem Road Not Taken. It is composed by Robert Frost. He was a great poet of Jamaica. As we see his title, that he has been known by the voice of America. Actually, from his very beginning stage, as when he was in 10th class, since then he started to write poem, and then he has mostly written about very simple poems that are related to life and a landscape. Actually, his writing has a very deep meaning that is uncommon to understand. Now, here, as far as Robert Frost is concerned, he has been honored during his lifetime by Pulitzer Prize four times Pulitzer Prize. Four times he has got the Pulitzer Prize and was also awarded by Congressional Gold Medal in 1960. That all these things denote that how great he was. Now, my dear, see the poem as it is. It is about the journey of life. The poem Road Not Taken is based on journey of life. Journey of life. Now, here this is not the simple that there was a road that has not been taken. It is about the journey of life, contains a deep and hidden meaning. Contains a deep and hidden meaning. I suppose that you are getting it. Now, this poem is about making choice. Making choice. Actually, before the poet, that he has entered just into the forest, a garden that is wood, and where the two roads were going. The road that is one and the second road, first and second road, the two roads were going. That diversion, that is the roads were divided. Here, he was in a critical condition, in doubtful status, that in which road, actually, through either left or right, in which direction should he go. There was a difficult decision, a making choice. The choice that is based on decision making. Now, here, as a traveler, the poet has been passing and going during the winter season or at the season of fall. That is autumn season, you can say. That is the season of fall. At this moment, the whole forests have been shedding its leaves over the ground, so as both the roads, those were located at the forest, were covered with the yellow leaves. The whole tree, all the trees, the leaves of all the trees were yellow because of the autumn season, because of the setting time. As the leaves were old enough, and therefore it has been yellow in color. That is autumn season. Autumn season.
autumn season. Let me write. This poem belongs to autumn season. He comes to a point. This is the point. He comes to a point from where he has to take decision whether to which way should I go. Now I am just going to read the poem here. Two roads diverse, that is division, in a yellow wood. The wood was yellowing because of autumn season. It is yellow because of autumn season. The whole wood, the whole forest were in yellow color because of autumn season. And sorry, I could not travel both. It is the problem. And be a traveler. Long I stood and looked down once, as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Then took the other, just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though, as per that, the passing here had warned them really about the same, and both that morning equally lay in leaves no step, had trodden black. Ah, I kept the first for another day, yet knowing how way leads to the way, I doubt if I should ever come back. I shall be travelling this with a sigh, somewhere else and else hence, two routes diverge in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. Now here, as you know, that the poet is as a traveler, जैसे कि यह एक यात्री है, and in autumn season, especially autumn के season में, he has been getting himself standing at the meeting point. ऐसे मीटिंग पॉइंट पे स्टे कर रहा है, रुका हुआ है, जहाँ से दो रास्ते निकल रहे हैं, वेयर ही हैज़ बीन गेटिंग टू वेज, टू रोड्स. और ये तो सबसे बड़ा मुश्किल की बात है, दैट ही कैन नॉट ट्रेवल ऑन बोथ द रोड्स टुगेदर. एक साथ दोनों सड़कों पर चलना इसके लिए संभव नहीं है, किसी के लिए भी संभव नहीं है, इसके लिए भी संभव नहीं है. तो जैसे कि ये कहा गया है कि जर्नी ऑफ लाइफ है, तो ये यहाँ हमको एक्चुअली एकदम एक्यूरेट ये रोड पे नहीं ला रहा है, ये हमको रोड पे नहीं ला रहा है. रोड 1 और रोड 2 पर हमको नहीं ला रहा है. एक्चुअली ये हमको ला रहा है ऐसे कंडीशन पर कि जैसे अभी आप ये समझ रहे हैं कि जीवन चक्र चलता है. आप अभी 9th क्लास में हैं, 10th में जाएंगे, तो 10th जब पास करेंगे तो आप ये चूज़ करेंगे कि आपको कॉमर्स पढ़ना है, आपको मैथ्स पढ़ना है, या फिर आपको बायोलॉजी पढ़ना है, या फिर आपको आर्ट्स पढ़ना है. तो देयर यू विल गेट एटलीस्ट 4 अल्टरनेटिव ऑप्शंस. इन दीज 4 अल्टरनेटिव ऑप्शंस तो आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे. कौन सा ऑप्शन होगा? एक आर्ट का ऑप्शन होगा, आर्ट साइड जो साहित्यिक विषय होता है, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, हिंदी, इंग्लिश इत्यादि आते हैं. फिर आपको एक कॉमर्स होता है जिसमें आपको इकोनॉमिक्स, अकाउंट, कॉमर्स पढ़ाया जाता है. आपको एक बायो आता है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री होता है. एक आपको मैथ्स मिलता है जिसमें आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट और होते हैं. 2 सब्जेक्ट इसके भी साथ होते हैं, इसके भी साथ और इसके भी साथ होते हैं, तो सबके साथ होते हैं. कुल आपको 5 सब्जेक्ट से लेकर के इंटरमीडिएट में चलना होता है लगभग. अगर आप कंप्यूटर का चॉइस करना चाहें तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप कंप्यूटर चॉइस कर सकते हैं, जैसा भी रूल हो, जैसा भी आपका स्कूल सिस्टम अप्लाई करता हो. नाउ एंड इट इज़ अ क्वेश्चन बिफोर यू पीपल
that on all four ways you cannot move. आप इन चारों पर एक साथ नहीं चल सकते. कैन एनीबडी गो? नहीं, ये तो संभव नहीं है कि कोई इन चारों पर एक साथ चल सके. तो इसलिए अब आपको किसी न किसी एक पर ही जाना होगा. एंड सपोज दैट, कल्पना करिए, देयर इज़ नो गाइड. आपके पास कोई गाइड नहीं है जो आपकी मदद कर सकता है. वन हु कैन हेल्प यू. देयर इज़ नो गाइड यू हैव हु कैन हेल्प यू, कि आपकी मदद कर दे. कोई नहीं है. तो फिर जब कोई नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? आपको यू हैव टू टेक योर ओन चॉइस. अब यहाँ डिसीजन मेकिंग आता है, मेकिंग ऑफ योर डिसीजन. देन एट लास्ट मोमेंट, आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन, you have completed graduation or intermediate, then graduation, then post graduation, or after intermediate you have been selected according to the biology or according to the maths or somewhere else. But after graduation, suppose that you could not be selected, then you have to complete graduation. And after graduation, जब BA BSc BCom कोई एक कर लेंगे तो उसके बाद आपको अपने नौकरी की तलाश होगी. तो फिर अब आप यू कैन नॉट कम बैक. जब आप अपने एजुकेशन को प्राप्त कर रहे हैं 4 ब्रांचेज में, मान लीजिए कि आपके पास 4 ब्रांचेज हैं, इन चारों ब्रांचेज में से किसी एक ब्रांच पे आप गए, तो अब आप ये पुनः यहाँ वापस नहीं आ सकते हैं. यू कैन नॉट कम बैक एट दिस पॉइंट ऑफ प्लेस फ्रॉम वेयर यू हैव स्टार्टेड टू मेक द डिसीजन. वाई? बिकॉज इट हैज़ बीन डन एट द अर्ली टाइम ऑफ योर लाइफ. अभी आप साल भर बाद 10 में जाएंगे, 10 के बाद जैसे ही 10 का बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, आफ्टर दैट यू हैव टू मेक अ चॉइस. तो यहाँ आपका हेल्पर है. हियर इज़ योर टीचर्स, हियर इज़ योर गाइड्स हु विल मोटिवेट यू, हु विल सजेस्ट यू टू विच सब्जेक्ट यू हैव टू ऑप्ट, बाय विच सब्जेक्ट यू विल गो फर्दर. आप आगे किस सब्जेक्ट से बढ़ेंगे, इसके बारे में आपको ये काम करना है. तो उसी तरीके से अब ये जो 4 ऑप्शंस हो गए, this is the journey of your life. It will depends, your journey of life will depend on behalf of the way that you have decided to move on. कि किस रास्ते पर आप चलने के लिए ये डिसाइड कर रहे हैं, ये आपका भविष्य निर्माण करेगा. योर फ्यूचर विल डिपेंड ऑन दीज 4 ऑप्शंस. ये आपको समझाने के लिए मैंने बोला है. तो इन द सेम वे, सपोज करिए कि पोएट के सामने 2 ऑप्शंस हैं. अब आपको ये मालूम नहीं है कि कौन सा रास्ता अच्छा है, किस रास्ते पर चलेंगे तो हमारी पर्सनालिटी डेवलप करेगी और हम एक अच्छे इंसान होंगे, एक अच्छे नागरिक होंगे. बाय विच वे शैल आई बिकम अ वेरी गुड सिटीजन फॉर द नेशन एंड आई विल बी वेरी मच प्रोडक्टिव, आई विल बी एन एसेट फॉर द नेशन. यू डू नॉट नो. सो दिस इज द रिजल्ट विल बी सीन. इसका रिजल्ट कब दिखाई देगा? इसका रिजल्ट बिल्कुल लास्ट में दिखाई देगा, जब आप बिल्कुल एकदम अपने जीवन के ऐसे पड़ाव पर होंगे, ऐसे प्लेस पे होंगे फ्रॉम वेयर यू कैन नॉट कम बैक. एट दैट मोमेंट यू विल सी द रिजल्ट और consequence. The result will be seen. Later. That is in future. Seen in the future. रिजल्ट विल बी सीन इन द फ्यूचर. अब आपको इसका रिजल्ट आपके भविष्य में दिखाई देगा. तो भविष्य में दिखाई देगा. अब भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, उसी तरह से पोएट यहाँ जो है डिसीजन मेकिंग के बारे में ये बताता है कि वेन एवर यू हैव टू टेक एनी डिसीजन, इट इज़ वेरी मच नेसेसरी टू बी वेरी मच सीरियस, वेरी मच कॉशस. बहुत सीरियस होना है, बहुत केयरफुल होना है, बहुत कॉशस होना है to find the right way. So let us once more come back the poem, and I think that you have got it. Now, as far as the summary of the poem is concerned, as I told you that the poet is standing at the main point, at the point from where the roads were diverging, जहाँ से दोनों रास्ते जा रहे हैं.
and he is in muddling status or confusing status that which way should he travel, किस रास्ते से वो ट्रैवल करे। लेकिन वो क्या देखता है, ही ऑब्जर्व्स स्टैंडिंग ऑन दिस पॉइंट, ही ऑब्जर्व्स बोथ द वेज, इन दोनों रास्तों को बड़े केयरफुली ऑब्जर्व करता है, बड़ा ध्यान से देखता है कि कैसा रास्ता है, किस तरह का रास्ता है। तो अब एक रास्ते को वो देखता है, एज़ फार एज आई कुड, जहाँ तक संभव होगा। कुछ दूर जाने के बाद ये पता चलेगा कि ये रास्ता इधर से मुड़ रहा है, इधर से जा रहा है, दिखाई नहीं देगा। तो वास्तव में फ्यूचर के कोई भी रास्ते दिखाई नहीं देते हैं। एक अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर हम इस रास्ते पर चल रहे हैं या फिर मेरा ये सब्जेक्ट ऑप्शन हमने लिया है तो फिर हम भविष्य में क्या हो सकते हैं, व्हाट कैन आई बिकम इन द फ्यूचर, बट नोबडी नोज द फ्यूचर, कोई फ्यूचर के बारे में जानकारी नहीं रखता है। तो इस तरह से क्या है, वेयर इट कैन बी इट बेंट इन अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ का मतलब होता है कि झाड़ियाँ होती हैं, श्रब्स हैं। तो वेयर डज इट बेंड, ये कहाँ झुक रहा है। देन इट टुक अनदर जस्ट एंड नाउ ही फाइंड्स द अनदर वे टू सी द वे एंड ही नोटिस दैट बोथ द वेज आर इक्वल, बोथ द वेज आर इक्वल, दोनों रास्ते एकदम सेम दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि देखिए यहाँ तो एक थोड़ा सा ऑप्शन हमको मिलता है कि अगर हम एक रॉन्ग वे लेते हैं, रॉन्ग और गुड पाथ, रॉन्ग पाथ और गुड पाथ, जीवन का, जीवन के अच्छे रास्ते, जीवन के खराब रास्ते। तो जैसे कि हमारा ज्ञान है कि इफ़ वी ऑप्ट रॉन्ग वे ऑफ लाइफ दैट विल गिव अस मच मोर इंटरटेनमेंट, हमको बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट देता है, बहुत ज़्यादा इंजॉय देता है, हम ऐसा महसूस करते हैं। और वास्तव में जो एक कहावत कही गई है, एक स्टेटमेंट है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, सारी चमकने वाली वस्तुएं सोना नहीं होती। तो जो भी चमक दमक वाली वस्तुएं होती हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम होती है, वो बहुत कम तक समय तक रह सकते हैं, स्टेबिलिटी उनकी ज़्यादा नहीं होती है। और अच्छे पाथ में आपको ये जानना कि जब हम बुरे पाथ पर चलते हैं, वेन एवर वी ट्रेवल ऑन दी रॉन्ग पाथ वी गेट नो डिफरेंस, नो बैरियर इन आवर लाइफ में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती है, बड़ी स्मूथली आदमी गलत कार्य करते आगे चला जाता है। लेकिन जैसे ही हम अच्छे रास्ते पर जाते हैं तो अच्छे रास्ते पर हमें बैरियर्स ज़्यादा मिलते हैं, बाधाएं, हर्डल्स बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत ज़्यादा बैरियर मिलते हैं, बहुत ज़्यादा हमको परेशानियां होती हैं। जैसे सत्य बोलने वाला आदमी हमेशा परेशान हो जाता है, लेकिन अंत में सत्य की विजय होती है। झूठ बोलने वाला हमेशा आदमी विजयी होता चला जाता है, लेकिन लास्ट में जैसे कि हम मूवीज़ देखते हैं तो इन द मूवीज़ वी फाइंड दैट द विलेन हु हैज़ बीन शोन सक्सेसफुल ड्यूरिंग हिज लाइफ and the actor, that is the hero, now suffers. We see that the hero found suffering during his lifetime, but ultimately in the last he has been shown as a successful person, whereas the villain has been shown a very unfortunate person during that time. तो उसको अनफॉर्चुनेट शो किया जाता है और एक्टर यानी हीरो को, मेन हीरो को हम दिखाते हैं कि ये बहुत अच्छा है और इसने सफलता, एट लास्ट ये सफलता पा गया। तो इन द सेम वे कौन सा रास्ता जाने पर हम अपने जीवन में सफल होंगे और किस रास्ते पर जाने से हम अपने जीवन में असफल होंगे, दैट इज़ अ ग्रेट थिंग्स। हियर द पोएट हैज़ बीन स्टैंडिंग ऑन बोथ द पॉइंट्स बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर। अब ये देखता है कि निश्चित तौर से certainly whenever we go right path, good path, we find that there is the difficulties, और अधिकांश लोग, most of the people now move only on the easiest way. तो which way is the easiest way? Actually the wrong path is the easiest way, क्योंकि we get success step by step because of the wrong path। हम रॉन्ग पाथ पे जाते हैं तो इमीडिएटली वी गेट सक्सेसफुल,
we become successful, we get immediately the result and we get the positive result. This is shown that we are achieving something else. Actually that is not achieving anything, it is losing everything. That is the thing. और जब हम अच्छे रास्ते पर जाते हैं, ये भी कह सकते हैं भाई कि हम अच्छे रास्ते पर क्यों जाएंगे जब इतनी परेशानियां हैं, और हम बुरे रास्ते पर जाते हैं तो हमारे पास कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जो रास्ता चलते समय वॉट एवर द टाइम यू विल इन्वेस्ट ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, तो बस केवल इसी समय में आपको जो भी परेशानी आनी है परेशानी आएगी, या आपको जो रिजल्ट मिल रहा है बुरे रास्ते पर चलने का, तो इतने ही समय में आपको बुरे रास्ते का रिजल्ट मिल जाएगा. सब्सिक्वेंट लाइफ, इसके बाद की लाइफ, दैट विल बी बर्डनसम बिकॉज ऑफ द रॉन्ग पाथ एंड इट विल वेरी प्लेजेंट बिकॉज ऑफ द गुड पाथ. अब गुड पाथ पर चलते हैं तो ये जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं ये सब तो अब कुछ नहीं हो गए. बाकी के जीवन में अधिकांश समय में जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक हम वी विल इन्जॉय अवर सक्सेसफुल लाइफ, तब तक हम अपने सक्सेसफुल लाइफ का इन्जॉय करते रहेंगे. नाउ लेट अस सी. तो अब ये कह रहे हैं दो एज फार एज द पासिंग हियर passing there, he won a very, just a minute. Now my dear, just I was telling about you. Though as far that the passing there had warned them really about the same, the poet has noticed that these two routes were looking similar to him. He was unable to find the distinction between these two roads. इन दोनों रोडों में वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि कौन बेहतर है कौन खराब है. That was the great problem to him. Now, warn them really about the same. Warn them really about the same. Both the roads were looking worn out. जैसे खराब दिखता हो या अच्छा दिखता हो, लेकिन दोनों बराबर जैसे दिख रहे थे. कोई भी रोड ऐसा नहीं सिम्टम दे रहा था कि ये दिस इज़ द गुड रोड एंड दिस इज़ द बैड रोड. तो फिर क्या? एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले. वंस मोर इन द नेक्स्ट स्टेंज द पोएट हैज बीन सेइंग दैट इट वाज लुकिंग द सेम, इक्वली ले. दे वर लाइंग इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. और क्या होता है कि द बिकॉज ऑफ द ऑटम सीजन की वजह से the leaves have been fallen over the roads and the roads were looking as if that nobody has gone through, trodden. कोई भी इसको अपने पैरों से के रास्ते गया नहीं, मतलब पैर से चलते हुए नहीं गया है, यानी कि इसके ऊपर से कोई गया नहीं है. In leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day. Should I keep द फर्स्ट रोड ऑन अनदर डे? दूसरे दिन क्या मैं इस रोड पर चल सकता हूँ? यानी कि जैसे मैंने अभी बताया कि आपको ये चार रास्ते हैं, क्या एक पर चलते हुए ऐसा नहीं है कि आज आपने ये किया तो कुछ सालों के बाद आप चेंज कर दें अपना रास्ता. एक दिन का सेंस यहाँ से एक दिन का नहीं है, ये कई सालों का है. मतलब इतने दिनों के बीच में क्या आप अपने चीज़ को चेंज कर सकते हैं? आप अपने रास्ते को चेंज कर सकते हैं? नो, इट इज़ इम्पॉसिबल. येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे. अब देखिए जब एक रूट जाता है, लेट मी इरेज इट ऑल, जस्ट ए मिनट माय डियर्स. Now this is the road that has been diverged from this place. अब ये कह रहा है कि suppose that 1 and 2 both the roads, and he says that each road has a different branches after branches. एक रोड निकल करके फिर कई ब्रांच उसके हो जाते हैं. So अगर हम इस रास्ते को अख्तियार करते हैं तो हम इन रास्तों पर चले जाएंगे, किसी एक रास्ते पर फिर आगे बढ़ जाएंगे, और फिर यहाँ से अगर चलते हैं तो यहाँ भी हम कई रोड पे एज द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज, सो एज सपोज दैट दिस वन इज़ द स्टेम. अब ये स्टेम है
और इसके बाद यहाँ ब्रांचेज निकल रहे हैं, एक रोड निकल रहा है, दूसरा रोड इधर निकल रहा है। अब इस ब्रांचेज के कई ब्रांचेज होते हैं, तो इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू कम बैक वंस मोर टू गेट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे आना ये संभव नहीं है कि ज़िंदगी के किसी भी क्षण हम यहाँ कम बैक कर सकते हैं। वी कैन नॉट कम बैक, वी कांट कम बैक, impossibilities. So I doubted if I should ever come back, कि हम कभी इस पर कम बैक कर लें तो ये संभव नहीं है। I shall be traveling, telling this with a sigh. Now he has been taking sigh that there is no option. He is feeling pain. Somewhere aches and aches hence. Somewhere aches and aches hence. जैसे कि अभी मैंने बताया कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडी, जैसे कि आपने आर्ट्स पढ़ा तो आर्ट्स से पूरा आपने एजुकेशन लिया, या फिर मैथ्स पढ़ा तो मैथ्स के माध्यम से आपने लिया, फिजिक्स पढ़ा तो फिजिक्स के माध्यम से लिया, केमिस्ट्री पढ़ा तो केमिस्ट्री के माध्यम से लिया, बायो पढ़ा तो बायो के माध्यम से लिया। तो अब उसमें टाइम लगेगा, it will take lots of time, that is known as age. Here age will take lots of time to complete one circle of life. लाइफ का एक चक्र पूरा करने में बहुत दिन लग जाता है, जैसे कि 50 years, 40 years, 30 years जो भी है, तो एक टाइम को पूरा कवर करने में टाइम लग जाता है। तो somewhere age and age hence, after this place, after many years from this decision, he will get the result. He will get the result. Result पा जाएगा. But at this moment it is impossible to him to get the result. और यहाँ से ये result पा जाए, it is impossible. यहाँ से वो result नहीं पा सकता है। तो two roads diverged in a wood. Two roads diverged in a wood. This one is wood. Wood means forest or jungle. Forest or jungle. And I took the one less traveled. अब इसने कहा कि एक इसमें से ऐसा भी रास्ता है जो लेस ट्रेवल था। तो लेस ट्रेवल इट मीन्स नंबर ऑफ पर्सन्स हैव अवॉइडेड। अब देखिए जीवन का जो रास्ता होता है, तो लोग किस रास्ते पर चलना चाहते हैं? कंफर्टेबल एंड इजी। इजी एंड कंफर्टेबल वे पे जाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि ज़्यादा संघर्ष ना करना पड़े। हाँ? लेकिन जो रास्ता अच्छा होता है वो हार्ड होता है, हार्डशिप, कठिनाई से भरा हुआ रास्ता होता है, लेकिन इसका रिजल्ट कंफर्टेबल होता है। और ये पेनफुल होता है, पेनफुल रिजल्ट होता है, और ये कंफर्टेबल रिजल्ट होता है। तो वो कह रहा है कि मैंने कौन सा रास्ता चुना जो लेस ट्रैवल था, यानी कि अधिकांश लोग उस रास्ते से नहीं गए थे, यानी कि दोज हु आर करेजियस पर्सन्स हैव डेयर, हैव करेज टू मूव ऑन दैट वे। आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाई एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस इन टू हिज लाइफ। तो हम क्या देखें, हम क्या पढ़े? ये पढ़ते हैं कि जीवन में जो हमें बनना है उसके लिए हमें बहुत ही डिसाइड होकर के, बहुत ही आश्वस्त होकर के, बहुत ही डीप थिंकिंग करने के बाद वी हैव टू ऑप्ट द वे ऑफ लाइफ। नाउ माय डियर, टुडे द क्लास इज ओवर and I hope that you have got it. Next, in my next video I will tell you the exercise
and some more questions. Up to that time, please thank you and good day. Take care. Thank you.